मैं जो है अब तक SAP ओपन कर लेता हूँ। एंड आप आपका रिनेम कर लीजिए, आपका नेम अगर असगर भाई मैं नहीं कर सक रहा हूँ आपको, आप जी कर जी लीजिए। मैं करता हूँ। या शुक्रिया। सो मॉडरेटर क्लास शुरू होने के बाद अपन रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे भाई। वैसे मैं अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करा। एक बार ये प्लांट हो Actually we require an enterprise structure, and what are the levels of enterprise structure, and what levels we need to create in SAP, and what actually a consultant will create. As I told you, in any enterprise structure, we have 6 levels, so, but out of all of those levels, we are not creating all of them, but we will create only from plant. You have to remember this as I'm telling you every time. So अपन जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चीजें हैं पूरे नहीं बनाते भाई। मैं जैसे क्लियरली आपको बोल रहा हूँ कि वी आर नॉट गोना क्रिएट एवरीथिंग हियर। क्लाइंट यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट, client will be created by your higher level management or SAP only. SAP will only give you this client. So these clients you are not going to create. And about this company code and everything is like maintained by finance team, finance and controlling team, FICO. SAP FICO people, you'll say what FICO people will do is like they'll create this company code data and all the financial documents like general ledgers and all these things, they'll maintain. So what you are going to do, you're going to create a plant, storage location, as well as purchasing organization, purchasing group, all these things you are going to create. So I'll quickly, in 10 minutes, I'm going to show yesterday how we have created all this, and now after that we will see how to assign each of them, because we are saying what we have done yesterday is like we have created a company code, we have created a plant, we have created a storage location. We have created them as individual entities, but the thing is we have to link them. Company code should be linked with plant should be linked with storage location. So this type of a link should be happen. So that link, we are going to do today. Assignments, I'll call it as assignment. So what is our T code to go any kind of configurations? SPRO. SPRO is your SAP project reference object. Okay, I'm entering into this. So see here, you can't do anything. Simply you're gonna click SAP reference IMG. This is the same scenario in your project also. यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, यहाँ पे project वगैरह कुछ भी नहीं लिख के रहता, सीधा सीधा you have to go into the screen SAP reference IMG. So here, whatever the configurations are there in SAP, whoever it may be a FICO consultant, it may be a WM consultant, it may be a PP production planning consultant, everybody has to come here and they have to configure the things for the client. So okay, as a consultant, what I will do, I'll go to enterprise structure, okay, and I'll go to definition, because I wanted to create some enterprises, okay, some enterprise levels. Financial is not my part, controlling is not my part, again logistics is again my and as well as WM part. So if I go to logistics, what I can see here, plant I can see, okay, and then if I close it, then if I come back to SD is again not my part, that will dealt by sales and distribution people. And then I'll come to MM part. In MM, when it comes to here, you will find storage location and purchase organization. Okay, so now in the definition, but instead of creating from plant, what I'm going to do is I'm creating company also. Why I'm creating company? Because in order to move forward, I have to create company and company code also. There is no FICO team in this, so we are discussing only MM part, right? So and we are not leaving this FICO part also. We are doing this FICO part also. So first step is creating this company. So what I'll do, I'll go into this. Okay, this clock symbol indicates your execute icon. That execute, if you see, you will see this screen. Okay, what is the T code for this? This is the path, which I have told you. In SAP, for each and everything, almost 99% of the things, you will be having path. 99.999 you can say. Okay, so everything you will be having path and as well as a T code. So what is the T code for this? 0x15. 0x15. 15. OX 15, right? OX 15. It's not 0, it's OX 15 it is. Okay, directly see, if I come back into all these transactions, if I don't want to remember this path, simply what I can do, I can type OX15 and I can directly go into that screen. I don't need to remember. If you can remember T codes, it will be easier for you. Okay, always directly you can go to T code and you can work. That is like a it can speed up your work. So if you remember T code, that will always be good. And even in interviews also, people will ask you, what is the T code to create a plant? What is the T code to create a store location? Nobody will ask you what is the T code for company code, because you're not a FI people. You are a MM guy. So for MM guys, what are the relevant things are there? They'll ask you. Even though if they ask you,
See what, okay, do you know the T code to create a company code? If you don't remember, you can say like, yeah, sir, I know, but no, I actually forgot, because most of the time I used to create only plant and store locations, but I didn't remember the T code for company code. So no offense, because it's not your part. It is additional thing, which he is expecting from you. If you can remember, you say like, yeah, for to create a company code also, it's a T code OX15, and he'll ask you, have you created company code? You shouldn't say like, yes, I created, because you won't create in SAP. What we will do is like, in order to get a job in SAP, what we will do, we will learn SAP and we'll keep some 1 year 2 years of experience, and then we will get a job. Usually these things will happen outside. So how people will identify, how interviewer will identify that you don't have an experience, means simply he will ask you, have you created company code? What you will say, you want to impress your interviewer, and you will say like, yes sir, I created company code. Yeah, the T code is OX15, you will say. But it's not like, you said like, yes, I created company code by using OX02, and I created company by OX15. You shouldn't say like this, because you are not going to create. As a consultant, nobody will create company code. It won't happen. Mostly it won't happen. If any project is there, where a guy is having plus FI knowledge, the manager will use him in both the ways. He'll use him to create a company code also, and he'll use him to create a plant and company code and purchase organization also. It may happen, because some cross-functional consultant will be there. Even in my project also, one person is there who is having WM, who is called as a WM and consultant. So if you are having multi modules experience, so what will happen is like, you will be called as MM/WM consultant, or MM/SD consultant, MM/FICO consultant, like this. Your package will be higher again. Your demand will be more in the project. So these things will happen, and even the work will be more. Even they'll pay you high. That doesn't mean like, your work will be less. No, your work will be more, compared to the guy who is only working in MM. So if you wanted to have a multiple module experience, simply the thing is like, first, in order, you have to get a knowledge in MM. Then if you get a job in that, that's perfect. So then after getting a job, what you can do is you can learn other modules also, like an SD, FICO, anything, if you are interested. So because we shouldn't, learning is a thing like, we shouldn't stop. There is no age limitation for learning. Even at the age of 80 also, you can learn another module. So it's a very quite interesting, SAP part is, especially if I say. And not only SAP, as I told you, I'm not a guy, who always says, SAP is only the best one. No, there are so many other technologies are there in outside. So which cyber security, as I told you, data science is there. So many technologies, even DevOps is there. DevOps is a very beautiful one, very beautiful technology, where we have a very great demand. If you go to Amirpet, you have very good institutes, who can teach you DevOps also. So you have very good packages. That also, DevOps is also a very good field. So in order to start with, or in order to change your streams. So even in DevOps also, they are giving training. And almost for DevOps, the starting training fees starts from 25,000. 25,000 they'll be charging you, and you can learn DevOps in 3 to 6 months. And after that, definitely you'll get a fresher job, of a 4 lakhs package and all. So these are the technologies. It's not like, I'm deviating you people, but it's like, you should have a knowledge. It's not like, if I'm teaching SAP, means, I should, if I say always SAP is best, you shouldn't go anywhere. No. So if anything is there out of SAP, means, then I should also tell you like, yeah, you can go to this also. So it's not like, you should only stick to SAP. You have very good other technologies or trends, which you can follow. Okay, or at least you can guide your other people, or your brothers or sisters, everybody. So in SAP, especially when it comes to sisters, I said, some of even girls are also interested in this program, and some of them are already joining. So it's really a great field, for especially for girls, and even for the married ladies also, who can handle work and as well as family. They can definitely choose this field. Whatever the experiences they are having, they can keep those experiences, and people will hire girls definitely in functional side. Because why functional side means, the functional people will always be in touch with client. They are the people who always in the front end. Front end means what? You will always talk to client, and you will always gather the requirement. That requirements you'll map it with the SAP, and whatever the codings or the developments is needed, that the background ABAPer will be there. The ABAPer is a technical guy. Remember, the people who are choosing ABAP, they should have some coding knowledge. Especially the people who are from information technology and CSC background,
who are having knowledge in C++, Java, .NET, all these things, they can choose ABAP. But the people, if you're not from computer science background, you're from different backgrounds, definitely you shouldn't go to technical side of ABAP. Okay, but remember one thing, even some technical things also we will learn in this course if we have time. I'm trying to close all these sessions in 30 hours, means 30 days. So even though if I can able to extend, I can extend, and I can go to some technical things, I can go to some cross module things, some WM things, some PP things. Some people want me to teach some SD things also, that I can do. That can take another 1 week also. If I definitely have time, I can able to spend with you, to enlighten you from other modules and some technical side also. So whatever I know, I'll try to teach you so that it may benefit you, at any part it may benefit you. Okay, so yeah. So what yesterday we did is, as I told you, we have created company here. Okay, we can't create company client. As I told you, client will be always created. So if you enter into project, your role is to start from plant. Sometimes what will happen is like immediately you won't get an implementation project, you will get only support project. In support project, what will happen, all these things will be configured. You no need to configure any plant, any company code, nothing. You have to do any configuration. Simply what you will do as a support consultant, most of the if 30 people are in this class, all these 30 people are not getting any implementation project. Okay, uh, because I have seen so many of my friends who joined SAP recently, most of them got, even one of my friend who joined in SAP 4 years back. So he, almost in his 3 years of career, he worked only in support projects. And the latest, recently he got only one implementation project. Implementation means what? From scratch you have to implement SAP. Support means what? SAP was already implemented there. They will be having some day by day issues. Those issues you have to solve. That's it. You're not going to go configure anything. You're going to solve the issues. The customer is unable to create a PO, they are unable to post GR, they have some configuration issue for the plant, or the storage location, or they wanted to create another storage location, something, these kind of small issues, you will be handling as a support consultant. So most of you will get a job, will a position as a SAP consultant, but you will be deployed as a support consultant. You will be supporting the client, or the customer. So this will happen. So now I won't go beyond on these things. Definitely I'll go to this part. So what is this here? See, yesterday what we have created, remember, see here, Tata G1, Tata Group Inc. Okay, how I have created this? We do have option here. I can click on new entries. I can create my company here. Okay, so in this way we have created. Okay, or I can choose anything here, existing one. Okay, can I go back? OX15 here. OX15, right? Okay, I can create a company code directly by clicking on new entries, or I can copy the existing one. Okay, I can copy anything here. Like yesterday we tried to create a Tata Group, so you can choose that and you can create a new one. So the data, all the data it will take, and you can change it here. Instead of Tata, you wanted to group create an Hyundai, so HYN 001, like this you can give a name. So instead of Tata Group, I can write Hyundai Group. So it will be saved as another entity, another company code. Okay, the previous data will be same. We are not editing that. We are copying the existing data, because it's the company Tata is already in India and Hyundai is already in India. So I can take the data and I can copy it. But in real time, what will happen is like you won't be having any data here. In the real time, when you're working in a project, you won't have this data. This is all test data provided by SAP for you to practice. Okay, these IDES, UAS, IDS, US, and all these are the practice data. Okay, so have any do any one of you already created this company? Any one of you? Yes, sir. So do you able to create? Yes. Okay, that's great. So 1 second. सर पे एक डाउट है मेरा जी, ये अपन जो कंपनी जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, इधर पे कंपनी कोड यहाँ है, यहाँ पर ठीक है। ये जी। अपने को जो पहले तो अपन जब कंपनी बना रहे हैं, कंपनी है, कंपनी कोड नहीं है, तो कंपनी है, कंपनी पहले हाँ, बनाते बाद ये में कंपनी कोड। जी हाँ, कंपनी को कंपनी जब बना दे अपन, तब ये टाटा G1 जो आप लिखे, जो मैं जो टाइप क्रिएट कर रहे हैं ना अपन, हाँ,
तो ये कंपनी कोड में भी सेम डालना है? कुछ भी डाल सकते हैं भाई। कंपनी देखो, कंपनी को एसएपी में मैं क्या बोला मालूम है, एसएपी में आप ऐसा टाटा ग्लोबल के लंबा लिख ले तो मतलब नहीं जमता। एसएपी में हर एक को क्या है और डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करना पड़ता है। लाइक एक मटेरियल है, मटेरियल को उन्हें मैक्सिमम 18 डिजिट देता। ओके, लाइक एक कंपनी कोड बनाना है तो 4 डिजिट मैक्सिमम है, और 4 डिजिट में क्या लिख सकते हैं, पूरा कंपनी का नाम लिख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया तो डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नाम लंबा लिख ले सकते हैं आप, कितना लिखना है लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं बस हो रहा तो कंपनी 2 बोल के है ना, यहाँ पे भी लंबा लिख ले सकते हैं आप। मगर यहाँ पे जो एसएपी का डिफाइंड बॉक्स कंपनी बोल के है ना, ये एसएपी का कोड है जिसको आपको याद रखना पड़ता है। आपका कंपनी का नाम टाटा जीवन है, ये 6 डिजिट का है, टीए जीवन। अगर टीए जीवन रख लेता हूँ बोले तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 भी रख ले सकते हैं, या 10 20 30 रख ले सकते हैं, या HY DY Z1 क्या भी रख ले सकते हैं, रैंडमली कुछ भी रख ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक से दूसरा मैच होना, बल्कि जरूरी नहीं है। तो कंपनी, ये कंपनी बना दी अपने यहाँ पे। सो देन आई एम कमिंग बैक। और एक था क्या, उसके बाद क्या क्रिएट करे थे हम, व्हाट वी हैव क्रिएटेड आफ्टर कंपनी कंपनी कोड। अच्छा, ये एक चीज है भाई, यहाँ पे ऑलवेज एक आईडीएस लोग दिख रहा है, देखो यहाँ पे आईडीएस क्या है, ऑलवेज ए प्रैक्टिस क्लाइंट है। हर जगह आपको एसएपी में कंपनी कोड में तो आईडीएस एसएपी आईडीएस बोल रहा। ये आईडीएस बोल तो क्या है, कोई देखेगा ऑलरेडी गूगल में? आईडीएस बोले तो क्या है, इंटरनेट डेमोन्स्ट्रेशन एंड एवेल्युएशन सिस्टम। याद रखिए, इंटरनेट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो सिस्टम है ना ये, एसएपी का डेमो सर्वर है खाली। डेमो बोले तो आपको प्रैक्टिस के लिए देता है इन्हें। अरे ये इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते एसएपी। ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, जो प्रैक्टिस करने के लोगों के लिए है। आईडीएस सर्वर बोलते हैं। आप कहाँ पे प्रैक्टिस करें एसएपी बोले तो, प्रैक्टिस हमेशा अपन आईडीएस सर्वर में करते हैं। आईडीएस बोले तो क्या है भाई, इंटरनेट डेमोन्स्ट्रेशन एंड एवेल्युएशन सिस्टम। ओके, सो अब देखो आप कंपनी बना दिए, उसके बाद सेकंड स्टेज क्या था भाई, कंपनी कोड। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू कंपनी कोड। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन फॉर कंपनी कोड? OX02. If I click on OX02, I'll be coming here. You can see here, if I wanted to create a new company code यहाँ पे देखो, मैं 6 डिजिट नहीं रख सकता यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा। देखो 4 तक जाके रुक जा रहा है, कहीं को बोले तो इसकी लिमिट है 4 कंपनी कोड की। कंपनी की कितनी है भाई? 6 है। कंपनी की 6 है, कंपनी कोड की 4 ही रहती है। नया भी बना सकते हैं आप, यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी कॉपी कर सकते हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं आप। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे थे कल, एग्जिस्टिंग कॉपी कर रहे थे। एग्जिस्टिंग क्या बोले कॉपी करे भाई, उसका भी मैं रीजन बताया आप लोगों को। व्हाई आई हैव चोजन एन एग्जिस्टिंग वन, Because of every data of that existing company can get copied. इन्हें दम कर रहा हूँ। सो सी यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी कंपनीज क्रिएट करे हुए है। ये कंपनीज के डिटेल्स में अगर जाएंगे तो इसके बैकग्राउंड में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये कंपनी कोड बनाते हैं काफी नहीं होता, उसके पीछे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी बनाना पड़ता है। जैसे जनरल लेजर है, ओके, जनरल लेजर जो बनता है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल के रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे अपन नहीं बनाते हैं, एंड अपने को जरूरत भी नहीं है, उसको याद रख लेंगे। ओके, सो ये कई को बनाते हैं भाई बोले तो, ये कंपनी के जो कंपनी आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो मेन क्या फोकसिंग रहता है आपका, फाइनेंशियल। एक फाइनेंस का एक अच्छा बंदे को ले लेते हैं आप, सीए वाले को ले लेते हैं, या फाइनेंस फाइनेंस है, कोई कैशियर है, या जो है फाइनेंस के रिकॉर्ड्स देखने वाला है, या बैलेंस शीट बनाने वाला है। तो ऐसे बंदे को अपन चूज करते हैं, एमबीए में फाइनेंस करके, या उन्हें या ग्रेजुएशन में फाइनेंस है, ऐसे बंदे को चूज कर लेते। तो मेन फाइनेंशियल रहता कंपनी का कभी भी बैकबोन। तो फाइनेंस इसमें भी बैकबोन वही है भाई, कंपनी कोड बन रहा बोले तो कंपनी कोड के पीछे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहते। और डॉक्यूमेंट्स पूरे कौन बनाते, कौन बना के कौन असाइन करते बोले तो फिको वाले करते। अपन वो सब नहीं कर रहे ना, बोले क्या कर रहे हैं अपन, कोई भी एग्जिस्टिंग वाला ले लेके अपन कॉपी कर रहे थे कल। एग्जिस्टिंग वाला कौन सा लिए थे, कौन सा की इंडिया वाला रैंडम ले लिए, अपन कॉपी करके एक बनाए थे। क्या बनाया अपन यहाँ पे, TM01 बोल के बना लिए थे। ओके, इंडिया मॉडल कंपनी एक थी ऑलरेडी यहाँ पे, उस वाले कॉपी कर लेके अपन बना लिए थे। तो ऐसा करना अपन, आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए, वैसा कर लीजिए। उसके बाद हो गया अपना कंपनी कोड। इसका पाथ क्या था भाई, पाथ भी दिखा देता हूँ मैं फास्टली, SPROIMG। चलो मैं पाथ ही दिखाता हूँ, कैसे भी टी कोड सबको याद है। डेटाबेस स्ट्रक्चर में चले गए, डेफिनेशन में चले गए, फाइनेंस में चले गए। फाइनेंस में क्या क्या चीजें बनाना रहता बोलो तो, कंपनी बनाना रहता, क्रेडिट कंट्रोल एरिया ओनला बना लेते, अपन भी नहीं बनाते, कंपनी भी अपन नहीं बनाते, मगर अपने को होना है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं कंपनी बना दिया। उसके बाद देखिए, ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया रहने दो, ये बिजनेस एरिया, फंक्शन एरिया, एफएम एरिया, सेगमेंट, प्रॉफिट सेंटर, ये सब जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स वगैरह सब कौन बनाते हैं भाई, फाइनेंस वाला बनाता है। याद रखिए, अगर आपको इंटरव्यू कन्फ्यूज करने के लिए बोला तो हैव यू क्रिएटेड प्रॉफिट सेंटर, हाउ टू क्रिएट बोल के बोला तो आप जल्दी जल्दी में हाउ भाई प्रॉफिट सेंटर बनाना आता मेरे को, वो एंटरप्राइज सेक्टर में जाना, जाते जो है वहाँ पे आपने क्या रहता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल के रहता, उसको क्लिक करना, वहाँ पे आपने दिखता, वहाँ बना देना बोल के। अगर बोल दिए तो खत्म, पकड़े जाते तुम वहाँ पे, क्यों ना उसे सीधा पूछता रहे दीवान है प्रॉफिट सेंटर अपन ने बनाते, एफए वाले बनाते बोल के। सो वी आर नॉट गोना क्रिएट दिस प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट और व्हाटएवर इट इज। हमारा कंसर्न क्या है भाई इसके अंदर, सीधा सीधा अपन जाते एमएम में जाते, अपना हिस्सा एमएम में है। एमएम में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, स्टोरेज लोकेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दो मतलब है। इससे ज्यादा डब्ल्यूएम वाले भी नहीं हो तो क्या होता, डब्ल्यूएम वाले अगर नहीं है
तो ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट भी अपन ही बनाना रहता। इसमें क्या बनाते हैं अपन, प्लांट जो है ना, अक्सर प्लांट अपन बनाते। कभी कभी क्या होता है आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट रहता, तो बहुत बड़ी लंबे लंबे टीमा रहते हैं। लंबे लंबे टीमा रहने का उसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यू हर छोटा छोटा काम करने भी एक बंदा रहता है तुम्हारे पास। ओके, आपका ये जो है क्या बोलते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कल जो मैं बोला ना, वो टीआर को मूव करने भी एक बंदा रहता। कभी कभी उन्हें नहीं रहता, आप कुछ करना पड़ता, आप ही मूव कर लेते उसको, एक क्लाइंट से और एक क्लाइंट में। कभी कभी मूव करने के लिए आपको ऑलरेडी बंदा रहता, तो आपको मेला आते रहते, भाई जरा जो भी मूव करना है मेरे को दे दो, मैं मूव कर लेता हूँ बोल के। तो उसको अपन टीआर भेज देना, देख मैं इसमें ये टीआर है जिसके अंदर मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर स्टोर करा था, इसको मूव कर दे बोल के। सो दिस इज व्हाट गोना हैपन in a real time. Okay, so now in financial accounting, when you enter in financial accounting, you can see a defined company that we have already created, and then the next step is a defined company code. Edit, copy, check, delete company code. What is the T code for this? OX 0 02. OX 02 for company code. Okay, so now we have created company code. Now I am going back definition again. In definition, my financial accounting part is done, and I am coming to logistics general. This controlling part again is not mine. It will be dealt by again FICO people, and even we don't need to create anything here to move forward. To move forward, I need again plant now. So what I'm gonna do here, I'm gonna define, copy, delete, check plant. I'm gonna execute this. Okay, so this symbol is your clock symbol. If you click the clock symbol, you can execute it. So here you can define plant, or if you want to copy from existing plant, you can copy, delete, and check plant. Okay, yesterday I guess we have already created. Okay, what plant we have created yesterday? सर भाई यहाँ पर मेरे को एक डाउट है यहाँ पर। H1. यहाँ पे जो है हम प्लांट क्रिएट करे थे yesterday. Let me check that. Do we have the plant or not? जी कोई डॉट बता रहे थे, डॉट पूछिए। अगर भाई यहाँ पर अपन कभी एक एरर बता रहे हैं यहाँ पर ये देखो टाटा कल बनाए थे अपन, TAH1 हैदराबाद का प्लांट को बनाए थे। आप बोलिए भाई आपका सवाल क्या है? यहाँ पर मेरे को इधर पे जब अपन प्लांट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एक एरर बोल के बता रहा है, यहाँ पर डेटा लॉक बोल के बता रहा है इधर पे। डेटा लॉग बोल के बता रहा? हाँ मैं स्क्रीन शेयर किया, देखो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर। अच्छा कहाँ डाले, चैट बॉक्स में डाल दिया आप? नहीं चैट बॉक्स में नहीं है। मैं जिसमें जा रहा हूँ। ठीक है, अपन एंड में देखेंगे। ठीक है, जितने भी एरर्स है मैं सेशन क्या करता हूँ 9 क्या टाइम हो रहा है भाई अभी? 1 सेकेंड, इट्स 9:08 राइट। सो देखेंगे 9:20 तक मैं इसको क्लोज करके अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि असाइनमेंट ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई। थोड़ा अभी कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से। अगर असाइनमेंट खत्म हो गया देन वी कैन फोकस ऑन योर इश्यूज। ओके, सो लेट मी गो थ्रू इट। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे yesterday? वी हैव क्रिएटेड दिस प्लान। ओके, सो आपको डिफाइन भी कर सकते हैं, या पुराना कॉपी कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना भी यहाँ से चाहिए, कुछ भी डिलीट करना है बनाए सो इसमें डिलीट करना है, चेक करना तो भी ये है। उसके बाद आप ये डिफाइन लोकेशन वाला नहीं सिलेक्ट करते हम, क्या क्योंकि वो पार्ट जो है लॉजिस्टिक्स किसका, WM वालों का है। वी आर नॉट गोना क्रिएट लोकेशन, बट स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करते हैं अपन। मटेरियल मैनेजमेंट में जाओ, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, उधर लोकेशन में नहीं जाना अपन, ये लोकेशन क्रिएट करना। आपको लोकेशन बनाने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, तो लोग सीधा याद नहीं रहता, लॉजिस्टिक्स में ये बनाते क्या करते, सीधा जाते लोकेशन यहाँ बनाते। लोकेशन यहाँ नहीं बनाना अपन, MM वाले। सो हमारा MM का हिस्सा ये है, वी हैव टू गो टू दिस MM पार्ट, मटेरियल मैनेजमेंट, वी हैव टू क्रिएट दिस। यहाँ पे टी कोड क्या है भाई? व्हाट इज द टी कोड टू क्रिएट स्टोरेज लोकेशन? OX09। देखिए सिंपली याद रखने के लिए, देखिए प्लांट को OX10 है, प्लांट के नीचे स्टोरेज लोकेशन रहता है, उसको OX9 है, और उसके नीचे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है OX08 है, उसके नीचे परचेजिंग ग्रुप रहता। तो ये OX10 9 8 3 याद रखे तो बस आपको, प्लांट को 10, स्टोरेज लोकेशन को 9, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को 8, बस ये 3 याद रखे तो इंपॉर्टेंट है। कंपनी कोड का OX15 OX2 है, वो सब चीजें याद नहीं रखे तो चलता, क्योंकि आपका पार्ट नहीं है। ओके, परचेज ग्रुप का टी कोड OME4 है, OME4 परचेजिंग ग्रुप नहीं बनाया अपन, अभी बनाने वाले हैं, मगर उसका टी कोड याद रखिए OME4, एक ही अलग रहता, ये OX में नहीं शुरू होता, ये OM में शुरू होता। कई को OM में शुरू होता, वो भी बोलता हूँ मैं आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या करना, मेरे को मेंटेन स्टोरेज लोकेशन में क्लिक कर रहे थे अपन yesterday। सो क्लिक करते क्या पूछता है इन्हें, आपका प्लांट पूछता है पहले। कई को बोले तो हमेशा स्टोरेज लोकेशन बगैर प्लांट के नहीं बनता भाई, प्लांट होना पड़ता आपको। प्लांट में एक हिस्सा आपका स्टोरेज लोकेशन रहता है या पीछे रहता है। देखो एक शोरूम बनाया मैं, शोरूम में स्टोरेज यार्ड पीछे नहीं, जैसा मैं शोरूम नहीं बना लेता कोई कंपलसरी एक या दो कारा पकड़े सकता तो बना लेता मैं, पीछे स्टोरेज यार्ड रहता। या एक आप सुपर मार्केट गए, सुपर मार्केट में क्या होता है, सामने पूरा डिस्प्ले करता है मगर पीछे कहीं लेडीज बैठ के पैक करते रहते पीछे, वो उनका स्टोर रूम हो गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं छोटी भी कंपनी है तो पक्का उसका स्टोर रूम रहता है, छोटी ऑफिस भी है स्टोर रूम रहता है। स्टोर रूम में क्या रहते हैं, पेंसिल पेन रहते, पेपर रहते, उसमें भी रख लेता हूँ। तो ऐसा छोटी कंपनी क्यों ना हो, दे विल बी हैविंग ए स्टोरेज लोकेशन। सो दैट स्टोरेज लोकेशन वी आर गोना क्रिएट। यहाँ पे प्लांट सिलेक्ट करना था अपने को, प्लांट याद नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ,
ये ड्रॉप डाउन बटन दबाता हूँ. सो इफ यू क्लिक द ड्रॉप डाउन बटन, व्हाट यू विल सी, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे पैरामीटर्स सर्च करने के लिए. आपको सिटी दबा के देख सकते हैं, सिस्टम देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सिस्टम क्या दिए थे कल अपन, याद है किसी को? टाटा दिए थे शायद ना. अगर टाटा बोल के दिए तो देखो आ गया, देखे. तो मैं अगर टाटा बोल के नहीं देना चाह रहा हूँ भाई, क्या आता होगा देखेंगे. फिर यहाँ पे याद नहीं है मेरे को, मैं क्लिक करा, सिस्टम मेरे को याद था, मैं मार दिया टाटा बोल के. ओके, या सिटी मार सकते हैं आप, हैदराबाद बोल के मार तो आ जाता, कंपनी ने याद है तो मार तो आ जाता, प्लांट मार तो आ जाता. अगर नहीं बोले तो पूरा मार देना, पूरा मार दिया तो पूरी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे. इसमें अपना कहाँ है ढूंढ लेते बैठना आप. सो अपने को अगर सिस्टम, इसलिए क्या करना, कभी भी सिस्टम इजीली याद रखे से बना लेना है. या TAH1 बना दिया मैं, देखो टाटा बोल के बना लिया सिस्टम. टाटा बोल के इसलिए बना लिया, मेरे को ढूंढने ईजी होती है हमेशा. ओके, सो कभी भी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, याद रखिए. सिस्टम कभी भी क्लाइंट को इजीली ढूंढने के लिए बना देना. समझो कि क्लाइंट के प्लांट्स पूरे थ्रू आउट इंडिया सेटल होके है, हर स्टेट में एक है. तो सिस्टम में क्या करना, आप हैदराबाद बोल के लिख देना. तो उन्हें सर्च करते क्या करता, सीधा हैदराबाद बोल के मार लेता, या सिटी हैदराबाद बोल के मार लेता, कुछ भी. मतलब एक आइडेंटिफाइंग की समझो सिस्टम बोलते हो. तो यहाँ पे अपन हयात नगर स्टोर लोकेशन बनाए थे अपन हैदराबाद में कल स्टडे. ओके, SLH1 बोल के बना, याद रखिए इसको. राइट, सो दिस इज योर स्टोरेज लोकेशन स्टडे विच वी हैव क्रिएटेड. उसके बाद क्या करना भाई, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना. परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाए थे भाई अपन, किसी को याद है? तो आई कैन सर्च इट हियर, INTIN1 था शायद, आई गेस. ओके, ये छे टाटा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया अपन. ओके, देन आई एम गोइंग बैक. अब देखो भाई, मटेरियल मैनेजमेंट में और क्या रहना था, यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप रहना था. है क्या परचेजिंग ग्रुप? कैन वी सी परचेजिंग ग्रुप हियर? No. So now it is not here actually, but purchasing group is a part of material management. So why it is not here? So purchasing group is not a enterprise element. Enterprise का एक एलिमेंट होता है. एंटरप्राइज के एलिमेंट्स क्या क्या थे भाई? कंपनी कोड था, प्लांट था, और क्या बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन था, सब थे. मगर परचेसिंग ग्रुप बोल से क्या है, एक लोकेशन, एक एरिया होता हो, एक ग्रुप है खाली, एक ग्रुप. वो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है. वो ग्रुप एक स्ट्रक्चर एंटिटी नहीं होता हो, वो ग्रुप है खाली, एक पर्सन से, ग्रुप ऑफ पर्सन से, या एक पर्सन भी बन सकता. तो वो ग्रुप कहाँ रह सकता, डेफिनेशन में नहीं है. वो कहाँ रहता, फिर जाओ लाइक. अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की कहानी हो गई हमारी. मैं बोला SAP के अंदर, इन SAP डिस्प्ले MG स्क्रीन, या गोना यूज ओनली 2 फंक्शंस हियर. वन इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ये वाला, ओके. दूसरा वाला है, और क्या था भाई, मटेरियल मैनेजमेंट. अब पूरी दुनिया यहाँ से अपने, अब इसे काम हो गया अपने को, यहाँ पे नहीं जाते अपन कभी भी. अब हो गया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से काम हो गया, अब छोड़ दो उसको, खत्म. अब नो अपन SAP में हमेशा आओ, कहीं जाना इसमें जाना है इंटर मैनेजमेंट में. ये बकाया सब क्या है भाई, ये अपने को जरूरत नहीं है. लॉजिस्टिक्स में क्या रहता, रियल एस्टेट में क्या रहता, ये सब अपने को जरूरत नहीं है. और फोकसिंग ओनली ऑन मटेरियल मैनेजमेंट, ये क्लिक करना. अब दुनिया यहाँ से शुरू, यहाँ से जो भी चीजें करते SAP में पूरे ये 6 याद रखो. SAP में फंक्शनल कंसल्टेंट का काम करता बोले तो पूरे ये करता हो. देखो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट. आप खाली इस टाइम पे क्या करो वाला, मैं एक एक चीज ओपन करके क्या क्या है देख लेना खाली तक. फिर ये क्या है बोल के नेक्स्ट क्लास में नहीं पूछना, क्योंकि वो टॉपिक अपने नहीं हुई. जो टॉपिक ऑलरेडी होकर रहती है उसका सवाल आप कर सकते हैं, जो टॉपिक नहीं हुआ वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं. मगर आप क्या करना, हैबिट रख लेना के एवरीडे खोल के देख लेते रहना इसमें क्या क्या है. तो एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर द पाथ, याद रहता भाई. देखो परचेजिंग है, परचेजिंग ओपन कर लेकर डेली में ओपन करके देख लेते रहा तो बहुत अच्छी चीज है ये. कई बोले तो देखो परचेजिंग ओपन करते कितनी चीजें हैं इसमें, कम से कम 12-13 चीजें रहती है. एनवायरमेंट डेटा है, मटेरियल मास्टर है, वेंडर मास्टर है, परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड है, सस्टेनेबिलिटी, सोर्स लिस्ट, कोटा अरेंजमेंट, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले आगे में. ये सब चीजें आप देख लेते रहेंगे डेली ओपन करके. मतलब परचेजिंग अंदर ये रहता बोल के याद रहना आपको. अगर मैं बोला कि अरे भाई जाओ मटेरियल मास्टर कहाँ है देख, बोले तो तुम सीधे सीधे क्या करते, ज्यादा परचेजिंग क्लिक करके साथ जाके यहाँ पे दिखा देते उसको, मटेरियल मास्टर यहाँ है बोलते. तो ऐसा सोर्स लिस्ट बोला तो मैं सीधे चले आते यहाँ पे, तो आपको याद रहता कि पाथ अरे ऐसा है. तो एवरीडे ब्राउज करते रहना, ये एवरीडे ब्राउज करना, खाली परचेसिंग बिल की नहीं होता. ये मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हेड्स है यहाँ पे, हर हेड में जाके हर सेक्शन में जाना, ब्राउज करते रहना. अजगर भाई जी अपन डायरेक्ट सर्च में सर्च नहीं कर सकते, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट पे ऐसा बोल. एग्जैक्टली. देखो यहाँ पे मैं अगर मटेरियल मैनेजमेंट लिखा नहीं आने देता उन्हें सर्च में, खाली मटेरियल पर क्लिक करो तो क्या करता है उन्हें, मतलब हर सेक्शन के अंदर मटेरियल चीज रहती कंपलसरी, उन्हें सब देता है. यहाँ पे आप डायरेक्टली मार दिए खाली, समझो कि परचेज ऑर्डर बोल के मार रहा हूँ मैं. देखिए परचेज ऑर्डर, कुछ भी नहीं आता. कहीं के बोलते ये खाली टी कोड लेता भाई. यहाँ पे जितने भी है खाली SAP स्टैंडर्ड टी कोड्स रहते, ट्रांजैक्शन कोड्स बोल के बोलते, वो कोड मारे तो लेता उन्हें. अच्छा मगर कहीं को भाई ऐसा करे ना, फ्लेक्सिबल कर सकते थे ना, परचेज ऑर्डर मारते हुए आना ना बोले तो वो भी करे SAP वाले. अब जो नया एडिशन है S4 HANA बोल के जो आया, उसमें क्या होता बोले तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज करते हैं अपन. उसके बाद कस्टमर जब देखता उसको और एक स्क्रीन रहती है, वो जो वेबसाइट में रहती है वो भी स्क्रीन फियोरी का मैं लास्ट में दिखाता हूँ आप लोगों को. जहाँ पे क्या है आपको सर्च बॉक्स रहता है ऐसा ऐसे, पंप में परचेज ऑर्डर बोल के मार दिया तो परचेज ऑर्डर ओपन होता. टी कोड याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, याद रखिए. वो रिसेंटली आया, वो कब डेवलप करे उसको 2015 में डेवलप करे. 2015 से पूरा
टी कोड पे डिपेंड था। अब टी कोड याद नहीं रहता भी चलता, खाली परचेज ऑर्डर मारे तो भी आता आपको। मगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज करना है, वो मैं वहां जाके वहां सर्च में मार लेता हूँ तो नहीं जमता। कॉन्फ़िगरेशन पूरे होने के बाद सर्च में जाके पीओ बनाना है तो कस्टमर क्या करता, परचेज ऑर्डर मारे तो भी आता, टाटा वाला जाके बैठ के परचेज ऑर्डर मारे तो भी आता उसको गूगल में। फियोरी बल्कि रहता, फियोरी, फियोरी में एक सर्च बॉक्स रहता है वहाँ पे, वो सर्च में क्या मारा तो दिखता है उसको, वो भी जो है मैं दिखा सकता हूँ आप लोग क्लास में, ठीक है। फियोरी, फियोरी है वो नया टेक्नोलॉजी है एसएपी के अंदर। इसीलिए जो एसएपी जो है कई को ट्रेंडिंग है मार्केट में, कई को जो है हर कोई जो है ईआरपी वाले शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो है हंड्रेड्स ऑफ ईआरपी है। everybody is moving to SAP, they are having MS Dynamics है, पहले वो डोमिनेंट था माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स बोल के, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओन ERP सिस्टम था SAP के जैसा MSD बोल के था। पूरे लोग जो है MSD से SAP को आगे, कई को आगे बोले तो MSD में उतनी सारे जो है फंक्शनलिटीज नहीं जितने SAP के अंदर है, जितने सारे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी SAP के अंदर है। फ्यूजन सिस्टम है, ओक्टा बोल के है, OCT बोल के ओक्टा सिस्टम है, ओके। उसके बाद जो है फ्यूजन हो गया, ऑक्टा हो गया, और क्या है भाई, कॉलपी बोल के है, COLPPY, कॉलपी बोल के है। एंड कूपा बोल के है फेमस वाला, COUPA, कूपा, फाइनेंस वाले ज्यादा यूज करते थे इसको ERP में, कूपा बोल के। सो ये बहुत सारे लेगेसी सिस्टम्स है ERP के ऑलरेडी। मगर मैं जैसा बोला स्टार्टिंग में आप लोगों को, सो ये ERP फंक्शन जो पूरे एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर रहे थे वो। सो क्या हुआ उसके बाद बोले तो लोग जो है SAP क्या कर रहा है, ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। SAP कौन डेवलप करे भाई बोले तो ये IBM के जो 5 एम्प्लॉइज थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो 5 मिलकर डेवलप करे। ओके, कोई से भी इन्वेंशन जो है ऑलरेडी कुछ करके रहता है, इन्वेंशन आता है SAP के अंदर भी। आप एक 15-20 साल काम कर लिया, 10 साल काम कर लिया बोले तो आपको भी एक नया आइडिया आता। वो नए आइडिया को परवान चढ़ाने के लिए 4 दोस्तों को बना लेना जो आपके लेवल पे सोचते हैं या डिफरेंट सोचते रहते, उन लोगों को मिलकर आप भी एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई SAP जो है ऑलरेडी हो सब पूरी दुनिया के लिए। 20 साल तक रहता होगा, 20 साल के बाद SAP की जगह और कोई अच्छा सॉफ्टवेयर भी आ सकता। क्या भाई जितने लोग हैं अटेंड होके यहाँ पे 17 जो लोग हैं, इसमें से भी कुछ ऐसे लोग निकल सकते हैं जो नया ERP सॉल्यूशन दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वट एवर इट कैन हैपन, इट्स नॉट लाइक SAP जो है ये है भाई, इसके अलावा नया नहीं हो सकता, बोले इससे बेहतर भी हो सकता है भाई। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इतने लंबा पाथ कौन जाते हैं भाई, मैं गूगल सर्च बना लेता हूँ बोल के, आप जैसा बोले गूगल सर्च करके नहीं बोल के, तो इसको उतना ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ मैं। तो ऐसा है, तो जितना ऑप्टिमाइज आप करते गए उतना यूजर फ्रेंडली रहता। आजकल चीज़ें यूजर फ्रेंडली को लोग पसंद करते थे। आईफोन बहुत सारे लोग नहीं खरीदते, खाली शो ऑफ को खरीदते हैं अपन। ज्यादा लोग एंड्रॉइड को चले जाते हैं, एंड्रॉइड को जाते हो तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली रहता है। आईफोन में हर चीज नहीं करने देता उन्हें, हर चीज ईजी नहीं रहती आईफोन के अंदर। अब ये भी थोड़ी चीजें उन्हें उन्हें भी क्या है ईजी कर दे रहा कस्टमर्स के लिए। सो ज्यादा लोग को यूजर फ्रेंडली दिखे, मगर ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड्रॉइड सिस्टम रहता। क्या को रहता उसके अंदर हर चीज शेयर करना ईजी रहता आपको, उसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह डेटा शेयर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कुछ भी थर्ड पार्टी डिवाइस। मगर एप्पल फोन आपको सिक्योर रहता, एप्पल के डिवाइस जो भी रहते वो थर्ड पार्टी सिस्टम को जल्दी कनेक्ट नहीं करते, आपको जल्दी कनेक्ट नहीं होने देते हो। ठीक है, कनेक्ट हो गए तो भी जो ज्यादा देर नहीं रहता उन्हें कनेक्शन भी, तो बहुत सारा प्राइवेसी रहता, तो इट डिपेंड्स। सो इस SAP के अंदर जो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए सो पीपल आर स्विचिंग टू SAP। तो एक चीज याद रखिए। अब देखिए थोड़ा मैं इसको स्पीड अप करता हूँ बिकॉज आवर टाइम इज ऑलरेडी, क्या टाइम हो गया भाई, ऑलरेडी 9:19 हो गया। सो आई ट्राई टू शो यू असाइनमेंट आल्सो। देखिए अच्छा, मटेरियल मैनेजमेंट में गए अपन। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है यहाँ पे, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो आई एम गोइंग इनटू परचेजिंग। परचेजिंग में जाने के बाद क्या क्या है देखिए यहाँ पे, बहुत सारे पैरामीटर्स है यहाँ पे। ओके, सो क्रिएट परचेजिंग ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्रिएट परचेजिंग ग्रुप। सो आई एम गोना क्लिक दिस क्रिएट परचेजिंग ग्रुप्स। So the T code also there for purchasing group. What is the T code? OME4. You can note it down. OME4 is a T code. So this is your purchasing group screen. So what I'm going to do here is like I'm going to click on new entries, or I can copy the existing one. So what I'm going to do is I'm going to create a new entry. So यहाँ पे purchasing group बना रहा हूँ भाई। क्या 4 डिजिट में दे सकता हूँ यहाँ पे? नो, 3 ही ले रहा है यहाँ पे। परचेजिंग ग्रुप क्या बनाऊँ बोलो, आप लोग बोल सकते हैं परचेजिंग ग्रुप कुछ भी बना सकता हूँ मैं। परचेजिंग ग्रुप P01 बना सकता हूँ। परचेजिंग ग्रुप देखो हैदराबाद HY1 बना सकता हूँ मैं, हैदराबाद का परचेजिंग ग्रुप है तो। या वो ग्रुप का कुछ नाम है, एक टीम बना लेके एक नाम रख ली, तो वो नाम जो है 3 डिजिट में दे सकते हैं यहाँ पे। देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे HY1 बोल के लगा दिया, तो हैदराबाद का परचेसिंग ग्रुप हो गया, समझाइए। या जो है कभी कभी क्या होता है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में, रॉ मटेरियल्स परचेस करने एक टीम रहती, फिनिश्ड मटेरियल्स को एक परचेसिंग ग्रुप रहती, और जो है क्या बोलते हैं ऑफिस सप्लाईज की एक ग्रुप रहती। समझो कि आप मल्टीपल बना रहे हैं, समझो कि मैं ऑफिस सप्लाईज को एक बना रहा हूँ, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए एक बंदे को बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, HY1 बोल के बना सकता हूँ हैदराबाद के उसको। डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, इन्हें रॉ मटेरियल्स खरीदने वाला ग्रुप है, रॉ मटेरियल्स वो नहीं खरीदता इन्हें। ओके, और एक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे HY2 बन के बना रहा हूँ, इन्हें क्या कर सकता, फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड ग्रुप्स चीज़ा खरीदता। ओके, उसके बाद HY3 बन के बना रहा हूँ, इन्हें क्या करता, हमेशा ऑफिस सप्लाईज खरीदता, ऑफिस के पार्ट, ऑफिस की जो भी रिक्वायरमेंट है, चेहरा है, टेबला है, पेना है, पेंसिला है, क्या क्या होना है सब इन्हें खरीदता। ऐसा कितने ही बना देते परचेज ग्रुप।
एक कंपनी में एक करना बल्कि नहीं है, एक नहीं 10 भी हो सकते परचेसिंग ग्रुप, 20 भी हो सकते, 100 भी हो सकते, इट डिपेंड्स ऑन उनका रिक्वायरमेंट। यहाँ पर टेलीफोन नंबर देना है परचेसिंग ग्रुप का, ये ग्रुप का एक कौन सा टीम लीडर था उसका नंबर यहाँ पे देते हैं आप, उसका फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर भी देते, और टेलीफोन भी देना चाह रहे हैं टेलीफोन नंबर भी देते हैं। सो ये डिटेल्स आगे कितने भी डिटेल्स है सब यहाँ पे देते हैं आप, देखो एक्सटेंशन है, ईमेल एड्रेस है, ओके द डिटेल्स यू कैन प्रोवाइड हियर। सो आपके लिए अपन क्या करेंगे, एक परचेजिंग ग्रुप बना लेंगे या दो बनाएंगे बोले तो दो भी बना ले सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। सो क्या बना लेंगे भाई, अपन अपन टाटा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो टाटा में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं परचेजिंग ग्रुप्स की, ज़्यादा क्या खरीदती टाटा, टाटा मोटर्स वाले बोले तो टाटा मोटर्स को क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है भाई बाहर से ज़्यादा, कोई गेस कर सकते हैं यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स में लगाता हूँ, एक फिनिश्ड बोल के दो ग्रुप्स लगाता हूँ मैं यहाँ पे। फिनिश्ड में क्या क्या आते हैं बोलते हैं, टाटा ग्रुप वाला टाटा मोटर्स वाला क्या करता है, टायर उन्हें नहीं बनाता भाई, टायर बाहर से खरीदता। सो टायर टायर क्या है, ऑलरेडी एक गुड्स है, वो रॉ मटेरियल नहीं बोलते सकते, रॉ मटेरियल क्या बोल सकते, रॉ मटेरियल किसको, एक पेंट है, पेंट खरीद रहे हैं आप, पेंट रॉ मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, या जो है अब कार के बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना बोलते क्या होता है आपको, उसके शीट्स होना पड़ता, आयरन शीट्स होना पड़ता है, एल्यूमिनियम के शीट्स होना पड़ता, वो शीट्स में क्या करता हूँ बाहर से खरीदता हूँ मैं, वो इट इज अ रॉ मटेरियल। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मेरी कैसा ही बना सकते हैं भाई, उसका रिक्वायरमेंट है, आप एज बनाना लोगे नहीं है, आप कुछ भी कोड दे सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी बना सकते हैं। रॉ मटेरियल से एक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिनिश्ड गुड्स का एक बना रहा हूँ मैं, फिनिश्ड गुड्स, दो ग्रुप्स है समझो मेरे परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दो ग्रुप्स है, रॉ मटेरियल पूरे नहीं खरीदता, फिनिश्ड गुड्स नहीं खरीदता, नहीं भाई और एक भी बना लेता हूँ मैं, जैसे आप बोले ऑफिस सप्लाईज का बोलो तो यार रख लो, कौन यहाँ कौन कुछ भी नहीं बोला, ऑफिस सप्लाईज को एक और एक बना लेता हूँ, आपकी मर्जी, अक्सर ऐसी बना लेते लोग। तो उसका रिक्वायरमेंट है भाई, उन्हें कैसा चाह रहा है, आपका क्लाइंट कैसा चाह रहा है, कैसा उसका, तो आपका क्लाइंट चाह रहा है कि भाई ये सब भी नको इंजीनियर में कोई एक ही ग्रुप बना दो बोले तो आप एक ही ग्रुप बना ले सकते, नहीं भाई मेरी कंपनी को 10 ग्रुपा होना, रॉ मटेरियल को एक होना, रॉ मटेरियल में खाली एल्यूमिनियम शीट्स आयरन शीट्स ये सब खरीदने के लिए एक बंदा होना बोले तो आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोई एल्यूमिनियम शीट्स बोल के लिख सकते हैं, या आयरन शीट्स बोल के लिख सकते हैं, या ओनली आयरन मटेरियल्स बोल के लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर रॉ मटेरियल्स में पेंट खरीदना है, पेंट की एक अलग ग्रुप है, पेंट खाली पेंट, एक कंपनी को पेंट ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो बाहर से खरीदते रहता, पेंट के लिए मैं एक टीम अलग रखना चाह रहा हूँ बोले तो मैं क्या करता हूँ H/4 रख के ओनली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पेंट्स बोल के रख ले सकता हूँ मैं, या पेंट सप्लाईज बोल के रख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी जो है आप बना ले सकते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स। अगर एक आपकी कंपनी में सर्विसेज देखने वाले हैं, मतलब देखो वाटर ड्रेनेज सर्विसेज है, पानी के सर्विसेज है, पेंटिंग सर्विसेज है, क्लीनिंग सर्विसेज है, उसको एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सर्विसेज बोल के डाल सकते हैं, जितने भी सर्विसेज है आपके, प्लम्बिंग के रहने दो या क्या भी रहने दो, बाहर से हायर कर लेते हैं अपन। तो वो ग्रुप क्या करता है, हमेशा कहाँ पे भी कोई डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आ गया कि भाई देखो वहाँ पे पानी लीक हो रहा है, एक प्लम्बर को बुलाओ, नहीं तो जो है ये दीवाना पूरे जो है पेंट छिले गया भाई, पूरे पेंटर को बुला दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो पूरा, एक सैटरडे संडे छुट्टी आ रही है अपने को, या थर्सडे से संडे तक 4 दिन की छुट्टी है ना, तो 4 दिन की छुट्टी में जो आ सकते कर सकते, कोटेशन आप मंगा लो करो बोले तो ये ग्रुप क्या करता सर्विसेज वाला, ये ग्रुप क्या करता कोटेशन मंगाता, फॉलो अप कर लेता, पूरा कर लेता। रॉ मटेरियल वाले को मतलब नहीं है, फिनिश वाले को मतलब नहीं है, अगर ग्रुप्स डिवाइडेड है तो लाइक नंबर ऑफ ग्रुप्स यू कैन क्रिएट, ओके। अब बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। कहाँ सेव हो रहा है भाई ये, वेयर इट इज गोना सेव, इट इज गोइंग टू सेव विद ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के बारे में कल बोला, और डीपली जो है बाद में ही बोलता हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सेव करने के बाद क्या क्या करना रहता है बाद में अपने प्रोजेक्ट में, वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को कैसा मूव करते हैं एक क्लाइंट से और एक क्लाइंट को मूव करने की जरूरत क्या है, ओके। सो ये चीजें अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये टाइम पे क्या सीखना था आप लोगों को, खाली इसको जो भी कस्टमाइजेशन करते हैं अपन एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव करते हैं। कहीं को सेव करना है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में बोले तो वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को बाद में मूव करने, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एक डेटा कंटेनर समझे, डेटा कंटेनर, डेटा को उसमें स्टोर करके रख ले रहे हैं अपन डेटा को, समझो कि वो डेटा कहाँ से हो रहा है कि नहीं बोलता भाई मेरे ये रिक्वेस्ट में सेव होके है, ये रिक्वेस्ट को कल के दिन बेसिस एसएपी में बेसिस बोल के रहता, उन्हें क्या करता हमेशा एसएपी वाला, वो बेसिस वाला क्या करता आपके यूजर आईडी बनाता, आपके जो इश्यूज आ रहे हैं ना एसएपी अब लॉगिन नहीं कर सक रही, अरे भाई मेरे को यहाँ लॉगिन नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, पासवर्ड रॉन्ग बोल रहा, ऐसे जो भी मसले बेसिस वाले करते हैं आपको, ऐसे टीआर को मूव करना है, ओके। आपको ये क्लाइंट में लॉगिन कर रहे हैं और क्लाइंट में नहीं हो रहा, तो ऐसे जितने मसाइल है एसएपी के वो बेसिस वाला देखता है आपको, ठीक है। वो एक हमारा आईटी टीम समझिए, एक आईटी टीम का काम बेसिस वाला करता है हमेशा, यूजर्स को क्रिएट करना। अपना ये बंदे है प्रोजेक्ट में ज्वाइन करे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, कौन करता, आप सीधा सीधा एसएपी बेसिस वाला सीधा सीधा मैनेजर को पूछना, आप प्रोजेक्ट में ज्वाइन करें, ज्वाइन करते जो है मैनेजर को पूछना सर मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो कौन है बेसिस टीम वाला जिसको मैं रीच करना, या तू प्रोवाइड करता क्या बोल के पूछना, और मैनेजर रीच करता बेसिस वाले को और बोलता कि अरे फलाना बंदा जैन हुआ भाई, असलम खान जैन हुआ रिसेंटली एसएपी में, तो उसको एक यूजर आईडी पासवर्ड बना दो। नहीं तो क्या करता उन्हें बोलता असलम कैन यू टॉक टू सम गौतम और किसका तो नाम बोलता, उसे बात कर, उन्हें बेसिस वाला है देखो प्रोवाइड करता बोल के बोलता, सो तुम उससे बात करना, उन्हें प्रोवाइड करता। हो गया यहाँ पे देखो भाई, ये टीआर में मैं सेव करूँ, देखो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर टाटा असगर, मैं मेरे रेफरेंस के लिए बना लिया डिस्क्रिप्शन, मतलब मेरे को क्या समझ में आ रहा है देखे तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाए थे कौन की, टाटा ग्रुप के लिए,
टाटा के लिए, और यहाँ पे असगर बनाया था। ये डिस्क्रिप्शन देखते समझ में आता किसी को भी, तो डिस्क्रिप्शन कैसा भी लिख सकते हैं आप, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वगैरह लिख सकते हैं, उसके बाद आपका टाटा लिख सकते हैं, या नहीं तो जो हैदराबाद प्लांट वगैरह लिख सकते हैं, क्या भी आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं, वो रिक्वेस्ट में सेव हो गया, खत्म। कितने बनाए थे भाई अपन? 4 बनाए थे, याद रखिए, HY1, HY2, HY3, HY4। ओके, आई एम गोइंग बैक। अब देखो मैं पीछे आ जा रहा हूँ। I think we don't have time to go to assignments, but I'll show you the screens. 9:30 हो रहे हैं अभी, we started at 8:30, right? Okay. Can we extend the class for assignment also? नहीं तो यहीं रख के डिस्कस कर लेंगे अपन, कुछ डाउट्स है तो आप लोग बोलिए। अगर एक्सटेंड करना है तो और एक आधा घंटा होती है, असाइनमेंट पूरा देख सकते हैं अपन। नहीं भाई असाइनमेंट नको भाई, संडे है, ऑलरेडी ड्रे हो गया, हम लोग ये पहले प्रैक्टिस कर लेते बोले तो कल कल देखेंगे। अपन असाइनमेंट यही देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल देखेंगे, कल कल देखेंगे। एरर्स करेंगे क्लियर इंशाल्लाह। कर लेंगे। डाउट्स क्लियर कर लीजिए। असाइनमेंट्स कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। देखो खाली एक 1 मिनट में जो है आपको दिखाता हूँ कहाँ खाली करते हैं अपन असाइनमेंट। ओरली एक बार बोल दीजिए। फॉर्मली जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है ना, ये ओपन कर लेता हूँ मैं। अब तक क्या करे थे अपन, डेफिनेशन में गए थे, खाली नीचे असाइनमेंट में आना होता है। सिंपल है भाई, कुछ भी इसमें बनाना कुछ भी नहीं रहता, खाली जो लाया डाल देना रहता है। यहाँ पे खाली असाइनमेंट क्लिक करो, फाइनेंशियल में जाओ, यहाँ पे क्या है देखो, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये क्लिक कर लिया तो क्या होता है, आप जो कंपनी कोड बनाए वो कंपनी को असाइन करो, वो यहाँ पे होता है। कंपनी कोड को एक जगह डालना, कंपनी देखो यहाँ पे कंपनी कोड है, यहाँ पे कंपनी है। हमारा क्या था भाई देखो, याद है, जैसे को याद है अपना कंपनी जो बनाए थे अपन, TM01 ये था ना भाई अपना। अपना कंपनी क्या था भाई, 6 डिजिट कंपनी बोलो कौन तो, टाटा के जीवन बनाए थे ना अपन। टाटा जीवन। देखो अगर याद भी नहीं है तो स्क्रॉल डाउन कर लेना नीचे, यहाँ पे दिख रहा है देखो, टाटा जीवन, खत्म। इसको ये TM01 को टाटा मतलब कंपनी को असाइन कर दे रहा हूँ, तो ये कंपनी वाला समझता है कि अरे भाई इन्हें मेरा पार्ट है, मेरा हिस्सा है, इसको तुम सेव कर लेते। कहाँ से हो रहा है देखो, अगेन वॉइस रिक्वेस्ट में सेव हो रहा है। देखो मैं कर दिया, Transport कर दिया। request। ऐसे करो आप लोग कल भी। उसके बाद क्या करना आप लोगों ने देखो, असाइन कंपनी कोड टू, ये क्रेडिट कंट्रोल ले ले, ये अपन नहीं करे ना, नहीं करना, कंसोलिडेशन में नहीं करे, ये भी नहीं करे, जरूरत नहीं है, तो खत्म। ये हो गया, असाइनमेंट हो गया, फाइनेंशियल में हो गया। देन यू कम बैक टू लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में क्या है देखो, प्लान टू कंपनी कोड, ये क्लिक करो, यहाँ पे भी असाइन करो प्लान टू कंपनी कोड, ये हो गया, ये कर दिया, खत्म। देन कम बैक टू मटेरियल मैनेजमेंट, देन असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ये क्लिक करो फर्स्ट वाला। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या था भाई आप बनाए सो, INHN कुछ था ना, उसको कंपनी कोड को असाइन कर दो। उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ओके, प्लांट को भी असाइन कर दो, कंपनी कोड को असाइन कर दिए, प्लांट को असाइन कर दिए। ये जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये कल ऑलरेडी मैं डिस्कस करा था, खाली ये 2 असाइनमेंट कर देना अपन जो बनाए, खत्म, ये हो गया। उसके बाद और कुछ है भाई, मटेरियल मैनेजमेंट में चले गए, असाइनमेंट में हो गया, खत्म। सो दिस इज व्हाट यू आर गोना डू, ये असाइनमेंट ना जो अपन करने वाले हैं। सर टी कोड की लिस्ट है तो भेजो ना सर। टी कोड की लिस्ट अब आगे वाले जो क्लासेस के है ना, उसके टी कोड जो है आपको अब जरूरत नहीं है, अब लिस्ट भेजोगे तो भेजता हूँ मैं। टी कोड जो है अभी 50 फिलहाल 60 आप रुपए। जितनी करा रहे हो उसके टी कोड्स की लिस्ट भेजे तो बेटर रहता सर, प्रिपेयर होने। टी कोड की PDF लिस्ट में जो है है भाई। ऑलरेडी मटेरियल में है भाई, मैं आपको कल ही बोला था, मटेरियल में लास्ट पेजेस में है भाई। लास्ट पेजेस में पूरे है। एंड देखो मैं जो क्विक गाइड ओपन करता हूँ आपकी जो है कन्वीनियंस के लिए, SAP में ओपन करते जो भी टॉपिक हो रहे ना, देखो यहाँ पे हर टॉपिक का जो है मैं टी कोड यहाँ पे लिखे हुए है, सो आप देख ले सकते हैं, और लास्ट में भी रहता, तो एंड देखो चले जाइए भाई, लिस्ट है सारी, हाँ लिस्ट भी है। 68 मगर देखो ये T टॉपिक codes आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ रहे हैं, एवरीडे पढ़िए आप लोग, बगैर पढ़े जो प्रैक्टिस मत करिए। देखो यहाँ पे क्रिएट प्लांट बोल के है ना, प्लांट क्या है डिफाइन करा, प्लांट इज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विद इन ए कंपनी वेयर एक्टिविटीज टेक प्लेस, ए प्लांट विल प्रोड्यूस गुड्स एंड मेक्स गुड्स। सब है, बात भी दिखा रहे देखो, IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन लॉजिस्टिक्स जनरल डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लान, क्लिक करना, नहीं तो टी कोड OXTEN, यहाँ पे टी कोड आया देखो। तो कब का जब वहां का बैड कर लेना, वहां का याद करना, प्लांट के लिए हमेशा OXTEN है। तो नीचे आ जाओ, प्लांट बना दिए अपन। प्लांट बनाने के बाद क्या हुआ देखो, नेक्स्ट स्टेप का है अपना स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन को पाथ बोल रहा है यहाँ पे, टी कोड भी हो रहा, टी कोड यहाँ पे है। नहीं भाई मेरे को पूरी एक लिस्ट होना, आगे जाने वाले टी कोड में मैं अभी बाहर कर लेता हूँ बैठ के, संडे के दिन बोले तो यहाँ पे जाओ, पूरी लास्ट में हिस्ट्री रहती पूरी दुनिया यहाँ पे रहती है आपकी। देखो स्टार्टिंग से क्या क्या थे आपको, OX15 था, ग्रेट कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। असाइनमेंट को भी जो है आपके टी कोड से OX18 ये असाइनमेंट के याद नहीं रखे तो भी चलता, याद रखिए, खाली मेन आपको जो याद रखना था ये प्लान, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। मैं जब भी ये टी कोड लिस्ट पढ़ते हैं आप आगे जाने के बाद, मैं बोलता हूँ इसके अंदर कौन से टी कोड जो रहते हैं वो आपको कंपलसरी ऐड करना है हर क्लास में। मैं आपको बोल रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट था। देखो मैं कल बोला था आपको ये 2 जरूरत नहीं है भाई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, मगर ये 3 याद रखना पड़ता है, बल्कि ये 3 को याद रखिए, प्लांट को OX10, स्टोरेज लोकेशन को 9, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को 8। ओके, उसके बाद परचेजिंग ग्रुप को अगर याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं, OME4 नहीं रखे तो भी नहीं मारता होने, कुछ भी नहीं बोलता आपको। उसके बाद असाइनमेंट्स को आप टी कोड से याद नहीं रखे तो भी चलता, याद रखिए, मगर आप याद रख रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है। तो बाद में देखो क्रिएट मटेरियल, एक मटेरियल को बनाना है आपने आगे जाके, मैं बोला ना नेक्स्ट हमारी टॉपिक होने वाली है
जो अपन कल मंडे है ना, ट्यूसडे के दिन शुरू करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जान है आपका मटेरियल एमएम का कंप्लीटली जो बेसिक अपना क्या बोल सकते हैं फाउंडेशन समझते हैं आप। मटेरियल मास्टर डेटा है, मास्टर डेटा के बगैर नहीं हो सकता। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंटरप्राइज चलाने के लिए है आपका, फाइनेंशियल एक्टिविटीज वगैरह सब चलाने के लिए। उसके बाद असल बगैर अंदर डेटा कुछ होना ना पड़ता ना, डेटा मेंटेन करने का पूरा ये है MM01। ये याद रखना जरूरी है, MM01 इजीली याद रहता है आपने। MM बोले तो मटेरियल मास्टर 01। 2 हमेशा एडिट के लिए रहता, 3 हमेशा डिस्प्ले के लिए रहता है, ये जैसा बोला आपको। तो बस खाली आज के लिए अब तक के लिए बस यहाँ के टी कोड्स याद रखे तो बस से, मैं सब याद नहीं रखता बोलते, एटलीस्ट ये 3 याद रखिए बस। तो एक 0 to 10 9, ओके, और 8 भी, ये 3 याद रखिए, सॉरी 10 9 8, ये 3 याद रखिए। प्लांट के लिए 10, स्टोरेज लोकेशन के लिए 9, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए 8। और इसके पाथ भी याद रखना, याद रखिए पाथ कैसे जा रहे हैं, प्लांट को कैसे बना रहे हैं भाई, कोई बोल सकते हैं यहाँ पे पाथ बगैर देखे जल्दी। SPRO, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, देन कहां पे जा रहे हैं अपन, लॉजिस्टिक्स में जा रहे हैं या फाइनेंस में जा रहे हैं? फाइनेंस में किसको जाते हैं, कंपनी कोड को जाते हैं, फाइनेंस में कंपनी कंपनी को जाते हैं। लॉजिस्टिक्स को जाना पड़े तो प्लांट को जाना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स जनरल में गए तो प्लांट मिलता, और बैग आ गए फिर मटेरियल मैनेजमेंट में गए बोले तो स्टोरेज लोकेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन मिलता। परचेसिंग ग्रुप का मिलता बोले तो अब भाई यहाँ पे नहीं मिलता आपको, सीधा MM में जाओ डायरेक्टली, SPRO, IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, वहां पे आपको रहता क्रिएट परचेसिंग ग्रुप बोल के रहता, वहां पे क्रिएट करो। तो ये बात आप मेरे को बोलना कल एग्जैक्टली, अगर मैं पूछा किसी को पॉइंट आउट करके लिस्ट में पार्टिसिपेंट में जाके भाई बोल दिया मैं मोहम्मद कासिम, जरा बताइए साहब ये परचेसिंग ग्रुप कैसे बनाना, तो इमीडिएटली मेरे को बात बोल देना, टिकट पूछा तो टिकट बोल देना। ऐसा नहीं कि मटेरियल सामने रख लेके बोले आप लोग। सो ये मटेरियल बहुत अच्छी मटेरियल है भाई, मैं आप लोगों को बोला यू कैन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस, इसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे तो बहुत जो है बेनिफिट होता है आप लोगों को, बहुत फायदेमंद है। ओके, कलरफुल है ये जो प्रिंट आउट है, ये है मटेरियल ग्रुप में है, जी जी ग्रुप में मटेरियल है, अगर नहीं भी है तो फिर जो है आप ग्रुप में जो है मैसेज करेंगे तो कोई ना कोई शेयर करते हैं आपको। तो ये ग्रुप है, ये जो मटेरियल है। ठीक। तो और एक चीज और भी कर सकते हैं भाई, मेरे जहन में थॉट आया था, डॉक्यूमेंट जो है जो भी लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उसको पीछे के डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो एक जो है कॉमन मेलोडी बनाएंगे गूगल का, SAP के नाम से अपन बनाएंगे, SAP PSF कुछ भी एक नाम से गूगल जीमेल आईडी बनाएंगे। वो जीमेल का यूजर आईडी पासवर्ड सब जितने भी लोग ग्रुप में है सबको दे देता हूँ मैं जीमेल आईडी पासवर्ड। उसका जो G ड्राइव रहता है जीमेल का, उसमें जो भी मेल्स है वो मेल्स अपन एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आपके पर्सनल मेल से वो मेल को मेल डाले तो भी जो है मेल्स को मैं आंसर भी कर सकता हूँ। सेकेंडली कोई अगर वो मेल आईडी इनबॉक्स आपके पास है, आप आंसर कर सकते हैं तो आप भी आंसर करिए उसको, अगर कोई आंसर नहीं करे तो मैं भी आंसर करता हूँ उसको। और क्या है, गूगल ड्राइव रहता है उसका, वो G ड्राइव में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अपने पास, ऐसे के मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट के भी डॉक्यूमेंट्स आने तो, या मटेरियल भी रहने दो, या जो है ये यूट्यूब के वीडियोस के लिंक्स भी रहने दो, क्या भी रहने दो, तो गूगल ड्राइव में अपन कॉमनली शेयर कर सकते हैं। कोई भी नया बंदा भी आ गया, आखिरी दिन भी आ गया, उन्हें वो गूगल ड्राइव में गया तो उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो दिस वी कैन डू। अगर कोई इसके अंदर ऐसे है बना सकते तो कोई बनाइए कॉमन एक अच्छी जीमेल आईडी या पासवर्ड बना दीजिए, बना के कल शेयर करिए, हम लोग वो यूज करेंगे। मेरे पास जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैं इसको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये जीमेल और मेरे पासवर्ड जो ख्याल भी में रहता, जनरल ईमेल आईडी पासवर्ड के बजाय हाँ उसमें गूगल ड्राइव में एक ऑप्शन है ना, मतलब शेयरिंग का, जी डॉक्यूमेंट शेयरिंग, हाँ तो वैसा भी करते तो डॉक्यूमेंट उनके ईमेल आईडी पे सेव हो जाता। मतलब जैसा कि मेरा ईमेल आईडी imobin@gmail.com है, आप हाँ। उसमें शेयर करके खाली मेरा ईमेल आईडी मार दिए तो आपके पास का डॉक्यूमेंट आप शेयर कर देते। तो अब मेरे को बार बार शेयर करना पड़ता, आप सबको जी, सेलेक्ट करना पड़ता भाई मेरे को, वो है ना। वो एक असाइनमेंट लेना पड़ता है किसी को। हाँ, हाँ तो वो कोई अगर कर सक रहे हैं तो वो अच्छी चीज है कि, क्योंकि बार बार जो है मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ तो सब लोगों को चुन चुन के जो है 30 लोगों को ऐड करके मैं शेयर करना, 40 लोगों को ऐड करके, नहीं, कोई एक नया जगह बंदा आता सेव रख लेना पड़ता एक पूरा जगह सेव डॉक्यूमेंट, कर लेना सबके पड़ता। ईमेल आईडी। वो ऐसा कुछ अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो करेंगे, मगर मेरा जहन में जो बेटर सजेशन आया था कि एक कोई अगर अच्छी जीमेल आईडी जो आसान है, psfsap.com, psfsap@gmail.com, कुछ भी ऐसा बना दिए तो कॉमन पासवर्ड बना देना, थोड़ा जरा डिफरेंट टिपिकली रखो पासवर्ड, मगर उसमें खाली व्हाट्सएप गलती ग्रुप से में शेयर डिलीट हो होता। सकता है डेटा, बोलने का मतलब क्या डेटा बोल सकते, ईमेल डिलीट हो सकता बोल रही? हाँ, कोई हाँ डिलीट हो गलती गया तो से। भी मेरे पास मिल जाता ना, अभी मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड रहता है मेरे सिस्टम में, शेयर कर सकते हैं। मगर वो एक वे है, अगर कोई इसके अंदर ऐसे है जो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि भाई शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को एवरीडे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मेरे शिफ्ट के टाइमिंग भी अलग है, थोड़े दिन शायद मेरे को डिफिकल्ट हो सकता है, बाद में मैं फ्री हो सकता हूँ शायद, मगर मेरा जो एक्सटेंड करते जाने प्रोजेक्ट में और जो डेली इश्यूज आ रहे हैं, सो सपोर्ट भी कर रहा हूँ मैं, इंप्लीमेंटेशन हो गया SAP का, सपोर्ट भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं सपोर्ट में रहता है, सपोर्ट में इश्यूज डील करो तो क्या होता है आप लोगों को मालूम होता है कि SAP में इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या मसाइल आते हैं, सो दैट यू आर गोना नो एज ए सपोर्ट कंसल्टेंट। तो देखिए अगर कोई अगर इनिशिएट ले रही कि भाई जो है एक मेल में जो है मैं डेटा सेव करते रहता हूँ, शेयर भी करता हूँ, बोलो तो ठीक है, नहीं बोलो तो कॉमन मेल आईडी पासवर्ड बनाएंगे, जिसका पासवर्ड जो है एवरी वीक मैं चेंज करके रहता हूँ, चेंज करके ग्रुप में डालते रहते, तो मिसयूज नहीं हो जैसा, दूसरों को मिसयूज नहीं हो जैसा जो है उसको
एवरी वीक अपन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं उसको, एवरी संडे मंडे के दिन फिर वो पासवर्ड मैं शेयर कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। बहरहाल देखेंगे, कोई एक इसका सोल्यूशन लेके आइए, कल कल अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके, और कुछ सवाल है किसी को या क्लोज कर लेंगे? संडे है शायद, इतना ही काफी है। असाइनमेंट जो है सिंपल एक 5-10 मिनट की टॉपिक है, कल असाइनमेंट बोल दे के मैं मास डाटा शुरू करने वाला हूँ कल। अगर असाइनमेंट डेफिनेशन के अंदर किसी के पास सवाल है तो मास्टर डेटा का क्या करता हूँ मैं कल, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताने वाला हूँ कल, याद रखिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन एक ही कॉन्फ़िगरेशन करना अपन, कल अपन असाइनमेंट करने वाले हैं। असाइनमेंट के साथ साथ खत्म होता है इमीडिएटली मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट के अंदर असाइनमेंट मैं खत्म कर देता हूँ। देन अपने पास और एक 15-20 मिनट में मास्टर डेटा का पूरा डेफिनेशन, पूरे जो है इंट्रोडक्शन पूरा सब समझा देता हूँ आप लोगों को। कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फिर परसों दिखाता हूँ, सो दैट आप लोगों को जरा याद रखना इजी रहता है। फलाना डे वो करे थे, वो दिन का प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो आज का डेफिनेशन के तक प्रैक्टिस करिए। कोई असाइनमेंट भी करना चाह रहे हैं तो स्टेप्स जो मैं बताया ना, कल असाइनमेंट कर दीजिए, काम में काम हो जाता। कल अपन जो है मास्टर डेटा डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के साथ साथ। ओके, और कुछ भी सवाल थे आप जो है व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, ग्रुप में कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं स्क्रीनशॉट निकाल के डाल दीजिए, कुछ भी एरर आ रहे हैं तो जब भी मैं देख लिया मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर कोई मेरे से पहले अगर कोई देख लिए उसका आंसर आपके पास है तो फौरी जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि भाई देखो एसएपी का हर एरर का जवाब जो है मेरे पास हो या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास हो। कुछ एरर्स ऐसे जो सिली एरर्स रहते हैं, खाली खाली एरर्स रहते हैं, जिस गूगल में मारते मिल जाते हैं। एसएपी में याद रखिए एक चीज, कितना भी टिपिकल एरर रहने दो भाई, एसएपी के अंदर एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ये है, एसएपी को लोग स्विच भी इसलिए हो रहे हैं और एसएपी में लोग सर्वाइव भी हो रहे हैं। अब जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, अब इसमें जो है आप लोग एसएपी में शिफ्ट होने वाले रहते हैं आगे आगे जाके, आप सर्वाइव भी होते एसएपी में। कई को होते मालूम है, एसएपी में जो भी एरर आते हर एरर को गूगल में मारो तो आंसर मिलता है भाई। वो एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल चीज है। कितना भी टिपिकल इश्यू रहने दो भाई, कितना भी टिपिकल इश्यू, याद रखिए टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम भी आप पेश करना, वो एरर को पेश करके गूगल में मार देंगे। हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं, लोग हर सॉल्यूशन देते हैं वहाँ पे, बहुत सारे सॉल्यूशंस कोरा में रहते हैं या जो है एसएपी के बहुत सारे फोरम्स है जहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलता है, खाली गूगल में मार दो पेश करके आंसर मिल जाते हैं। अब ऐसा इशू है एसएपी में, स्टैंडर्ड इशू है जो गूगल में भी किसके पास आंसर नहीं है, तो एसएपी वाला भी जो है आपको एसएपी का क्रेडेंशियल मिलते हैं आपको प्रोजेक्ट में आने के बाद। एसएपी वाले को सीधे डाल सकते हैं भाई देखो मेरे को ये इशू सारा, इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं मिल रहा, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो बोल तो एसएपी वाले आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कस्टमर के रहता ना भाई, एसएपी जिसके पास खरीदे, ऐसा आपको आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लिए, आप एक वॉच खरीद लिए या फोन खरीद लिए, वो फोन में कुछ इश्यू आ रहा तो क्या करते हैं अपन, कस्टमर केयर को पूछते हैं, या घर में किसी कौन था इसको पूछ लेते, समझ में नहीं आया तो सीधा कस्टमर केयर के पास जाते या शोरूम को चले आते। तो द सेम वे एसएपी में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको हर एरर जो है गूगल में कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलता। ओके, अब छोटे छोटे सिली इश्यूज भी आप ग्रुप में डाल के इसको जो है लंबा लंबा डिस्कशन नहीं करना ग्रुप के अंदर, अननेसेसरी लोगों का टाइम वेस्ट होता है, वो नोटिफिकेशन आते रहते, तो कोई इशू है खाली गूगल में मार देना। आपको ये स्टेज में जो भी इश्यूज आते हैं ना, छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं भाई, उसको लंबे लंबे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में मार तो सोल्यूशन मिलता। अगर कोई 4-5 लोग डाल दिए भाई इसमें कोई इशू सॉल्व नहीं मिल रहा बोले तो जिसको सोल्यूशन मिला वो सोल्यूशन डाल दीजिए वहाँ पे। अगर आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा तो इमीडिएटली मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करके जो है आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ या आपको स्क्रीन शेयर करे तो मैं बता देता हूँ कि क्या पे मिस्टेक कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए। अगर कोई ऐसा इशू है भाई जब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं भी जो है मालूम करके आपको बोल सकता हूँ। तो ऐसा एसएपी में आज तक हम लोग ऐसा इशू को नहीं फाइंड करें जो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अब डे टू डे एक्टिविटीज में एसएपी के अंदर ऐसे इश्यूज आते जो अपने को मालूम नहीं रहता, साथ जो हम लोग क्या करते गूगल कर लेते या नहीं तो बाजू वाले को पूछते, उन्हें भी गूगल करता। आपके कंपनी में याद रखिए 25 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी रहने दो, उसको भी क्या है चीज नहीं रहती, उन्हें भी गूगल करता। याद रखिए आप लोग फेमिलियर होंगे, जो भी लोग आईटी में है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा तो गूगल कर लेते हैं अपन। सो एसएपी में भी ऐसी छे भाई, कोई सा भी एरर आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो गूगल में मार देना। आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कंपनी कोड को और प्लांट को कैसे असाइन करना समझ में नहीं आ रहा, तो किसको पूछो, बाजू वाले पूछो तो उन्हें क्या समझता आ रहा है, इसको हवाले को ऐसे पे नहीं आता होगा, समझता होगा तो आप क्या करना गूगल में मार देना हाउ टू असाइन कंपनी कोड टू प्लांट, तो वहाँ पे पूरे स्टेप्स ब्रीफली समझाते हो लोग, यूट्यूब के वीडियोस भी है, स्टेप्स भी रहते हैं, तो उसको फॉलो करके कर सकते हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ा डिफेक्ट भी एरर भी जो है एसएपी का सोल्यूशन मिल सकता है। अगर ऑलरेडी एसएपी के लोग इसके अंदर है, वो लोग को मालूम है वो कैसे हैंडल कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो आज के लिए काफी है इतना सारा, और कुछ भी अगर आपके पास सवाल है तो इंशाल्लाह अपन कल देखेंगे। ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। पार्टिसिपेंट्स है जरा वो अटेंडेंस शीट फिल कर दीजिए। सिर्फ 15 लोग देखा मैं आज, मैक्सिमम 18 या 20 कुछ आए थे, 20 17 आए थे शायद ना, 17 जो आज के अटेंडेंस में काउंट होगा। तो अटेंडेंस शीट मुबीन भाई यही शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही लोग डाल सकते हैं अटेंडेंस। अगर ग्रुप